Hello everyone, welcome to my channel BioFingerprints. I hope you all are doing well and have been enjoying my videos. In my last video, I had covered transportation in plants and animals. आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Today I am going to cover excretion part. So let's start. Before moving ahead, let's see here are some learning objectives which we are going to cover in this topic. Excretory system, structure of a nephron, excretion in humans, how is urine formed, artificial kidney, role of other excretory organs like skin, lungs, liver, large intestine, excretion in plants, an explanation of previous year's board questions is also covered in this video. There are some previous year's board questions also. Please find the link of nutrition, respiration and transportation with related NCERT questions and previous year's board questions in the description box. So, what do you mean by excretion? It is the process of removing waste and excess water from the body. In our body, excretory organs are skin, liver, large intestine, lungs, kidneys. But kidneys are the main excretory organs. Now, have a look on our excretory system. So, it comprises of kidneys, ureters, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा और इन सभी पार्ट्स को हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं. किडनीज आर टोटल 2 इन नंबर. यूरेटर्स आर ऑल्सो 2 इन नंबर. यूरेटर्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. जो ये वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है जो इस किडनी को इस यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट कर रही है, इन ट्यूब्स को हम यूरेटर्स कहते हैं. दीज आर ऑल्सो 2 इन नंबर. नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर. सो इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर और ये लिक्विड वेस्ट को कलेक्ट करता है. It is elastic in nature. When it is filled, a message is sent to your brain that it is filled. Now, urethra. So, urethra ये एक opening होती है by which urine is passed out of the body. And this process is known as micturition. I am writing here the term micturition, micturition. So, it is a term when actually your urinary bladder is completely filled और ये एक message आपके brain में जाता है कि urinary bladder पूरा full हो चुका है. Now it's a time to excrete out. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है किडनी का, ये एक आउटर स्ट्रक्चर है और ये वाला जो डायग्राम है, ये जो इमेज है किडनी की, ये अनेटमी है. अनेटमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, कि इंटरनली किडनी कैसी दिखती है. अगर आप उसका ट्रांसफर सेक्शन करो, ठीक है, अगर आप किडनी को कट करके देखो तो वो किडनी इस तरह से दिखेगी अंदर से. तो दिस इज द अनेटमी एंड दिस इज मोर्फोलॉजी, कि बाहर से बिना किसी चीज़ को कट किए एक्चुअल में जो सिस्टम दिखता है वो होता कैसा है. नाउ see this NCERT question on page number 113. The kidneys in human beings are a part of the system for nutrition, respiration, excretion and transportation. So the correct answer is excretion. Now, urine formation or excretion in humans, or how is urine formed? तो human beings में जैसे भी excretion होता है उसमें कौन कौन से steps involved होते हैं वो सारे अभी हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो जो steps involved हैं those are number 1 glomerular filtration, number 2 tubular reabsorption, number 3 tubular secretion, number 4 water conservation. So number 1 glomerular filtration. This is the process of blood filtration in our kidneys in which fluid, glucose, waste products are removed. So after blood filtration जो भी filtrate बनेगा that is made up of some amount of waste like glucose and some quantity of fluid. Next process is tubular reabsorption. इसके नाम से ही मैं पता चला रीअब्जॉर्प्शन मतलब चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं. तो इस प्रोसेस में चीज़ें किडनी में रीअब्जॉर्ब होती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में हमें फिल्ट्रेट मिला था, जो वेस्ट था, उसमें से भी जो कुछ यूजफुल चीज़ें होंगी, ठीक है, वो यूजफुल चीज़ें वापस ब्लड में क्या हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी. और ये रीअब्जॉर्प्शन कुछ ट्यूब्स की हेल्प से पॉसिबल होता है. हमारी किडनीज में बहुत सारी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है लाइक पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्यूबुलर सिक्रेशन. तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप के बाद भी जो फिल्ट्रेट बचा, तो इसमें क्या होता है, इसमें इट रिमूव्स एडिशनल वेस्ट फ्रॉम ब्लड. एक बार फिर से फिल्ट्रेशन होता है और उस फिल्ट्रेशन में से भी कुछ एडिशनल वेस्ट को ब्लड में से रिमूव कर दिया जाता है. और इसमें कौन कौन से वेस्ट होते हैं, इनमें से होते हैं हाइड्रोजन, some amount of creatinine, NINE, some amount of potassium ions, ammonia, some amount of drugs, urea, hormones from the blood. So this step is important for maintaining the normal pH of our blood, and also this is also important for blood cleaning. Number 4,
water conservation. So this step involves the removal of water from the urine and returns it to blood, concentrates waste. इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जितना भी concentrated urine है सिर्फ वही बॉडी से excrete out होगा, उसमें कुछ extra amount of water present नहीं होगा. तो जितना भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो कम्प्लीटली वेस्ट है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ें हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर सकती है या बॉडी के काम आए. तो वो चीज़ें सिर्फ वही होती हैं जो टॉक्सिन्स होती हैं और वो बॉडी से रिमूव होती हैं. तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप लोग किसी एक छन्नी से जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े पोर्स होते हैं उससे किसी चीज़ को छानते हो, फिर आपने उस बची हुई चीज़ को भी और फाइन छानना होता है, तो आप लोग इस तरह की सीव लेते हो जिसमें उससे भी ज़्यादा छोटे छेद होते हैं जिससे कि उससे भी ज़्यादा फाइन चीज़ें बाहर आ सके. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन. व्हाट डू यू मीन बाय अ नेफ्रॉन? तो जैसे कि आप सेल के लिए बोलते हो कि सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, तो किडनीज भी कुछ छोटी छोटी सी यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, उन्हीं यूनिट्स को हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो अगर आप इसका एक सेक्शन सिर्फ इतना पार्ट अगर मैग्नीफाई करके देखो, सो दिस इज द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन ऑफ अ किडनी. सो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड some tubules. Glomerulus is a collection of blood capillaries in a cup-shaped structure जिसको हम कहते हैं Bowman's capsule. So here is the Bowman's capsule और इस Bowman's capsule में इस cup-shaped structure में कुछ blood capillaries present होती हैं और उन्हीं blood capillaries का जो collection होता है हम उसको glomerulus कहते हैं. So here is the glomerulus. Now tubules. Tubules are of three types: PCT, DCT and loop of Henle. PCT proximal convoluted tubule, DCT distal convoluted tubule, and here is the loop of Henle. So if you see the structure of glomerulus or Bowman's capsule here, it continues to form highly coiled tubules जिसको हम लोग PCT कहते हैं. ये वाला आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज PCT और यही PCT यहाँ पर ही मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है. सो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए PCT इज रिस्पॉन्सिबल. और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज का, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, वाटर, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है बाय द यूज ऑफ एनर्जी. इसीलिए हम इसको एक एक्टिव प्रोसेस कहते हैं क्योंकि एक्टिव प्रोसेस मीन्स जहां पर भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है. नाउ दिस PCT, ये वाली जो ट्यूब्यूल है, इट कंटिन्यूज टू फॉर्म अ लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले ये बिल्कुल वैसी है जैसी आपकी मम्मा आईऑक में यूज करती होंगी, जो जूड़ा पिन्स होती हैं वो इसी तरह की पिन्स होती हैं, राइट? So PCT continues to form this loop of Henle and this loop of Henle ascends to DCT. This is the part DCT. Now this DCT opens into this collecting duct. This is the collecting duct. Now PCT is the descending limb of loop of Henle. Descending इसीलिए क्योंकि इसमें से जो भी चीज़ होगी वो डाउनवर्ड जाएगी, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसीलिए हमने इसको बोला descending limb of loop of Henle. उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर राइज अप होती है, असेंड करती है, इसीलिए अब हम इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और जिसको हम DCT भी कहते हैं. तो PCT को तो हमने क्या बोला है? PCT को हमने बोला है डिसेंडिंग लिम्ब जो ये रहा, और DCT को हमने बोला है असेंडिंग लिम्ब जो चीज़ों को ऊपर राइज अप करने में हेल्प करती है. दिस इज DCT. तो दिस PCT इज permeable to water and impermeable to electrolytes. But this DCT is impermeable to water and permeable to electrolytes. ये दोनों बिल्कुल opposite हैं. Here is a common story of PCT and DCT. So body secretes hydrogen, potassium ions, some amount of ammonia also. They secrete all these things into the filtrate and reabsorbs bicarbonates from the filtrate. So therefore both maintain the pH and sodium potassium level in blood cells. Now see this NCERT question on page number 112. How is the amount of urine produced regulated? So there are two factors involved, or there could be two or many factors. So here I have enlisted only two factors. Number one, ADH. ADH आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एज इट्स नेम सजेस्ट, एंटी मीन्स ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट काम करता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं या आपकी बॉडी में जो वाटर क्वांटिटी है वो बहुत कम है, तो क्या होगा कि ये हार्मोन रिलीज होगा और ये हार्मोन रिलीज होकर वाटर को कंजर्व करेगा.
इट मीन्स अब आपकी बॉडी से कम वाटर एक्सक्रीट आउट होगा। नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज हाई इन योर बॉडी, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ले रहे हो तो क्या होगा कि आपकी बॉडी से जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा वो भी डाइल्यूटेड होगा। सो इट मीन्स द डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीटेड इज ऑल्सो हाई। नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस, HEEMO, कहीं पर अगर आपको HEMO स्पेलिंग भी मिलती है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हीमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑफ अ पेशेंट हुज किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली। तो जिनकी किडनीज नॉर्मली वर्क नहीं कर पाती हैं या किडनीज फेल्योर के टाइम पर ये प्रोसेस होता है, तो इसमें आर्टिफिशियली बाहर से सेम एक ऐसी यूनिट यूज़ करते हैं, सेम स्मॉल पोर्स वाली मेम्ब्रेन्स होती हैं जैसे हमारी बॉडी में नेफ्रॉन्स या ट्यूब्यूल्स वर्क करती हैं। ये यूनिट पेशेंट की बॉडी से यूरिया, पोटेशियम, एक्स्ट्रा फ्लूइड और क्रिएटिनिन ये सब बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती हैं, रिमूव करने का काम करती हैं, बिकॉज दे ऑल आर स्मॉल इनसाइड। और जो ये यूनिट होती है जो हम यूज़ करते हैं, इसी यूनिट को ही आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं या फिर डायलाइजर बोलते हैं। डायलाइजर यूनिट यूज करने की वजह से ही इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। नाउ come to the excretory organs. So excretory organs are accessory and main. So main excretory organs are kidneys, and accessory or helping or another excretory organs are large intestine, lungs, skin and liver. Let's see their function. So skin किस तरह से एक excretory organ का काम करती है, because skin produces sweat and oil. Lungs expel out carbon dioxide. Liver breaks down many substances in the blood, for example toxins. ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो एक पॉइजनस बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन का, सो इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये यूरिया बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीट्स बिलीरुबिन. सो बिलीरुबिन इज अ पिगमेंट which is responsible for giving the yellow color to our faces, and bilirubin is the byproduct formed when RBCs die. Now excretion in plants. So plants don't have excretory organs as we have. जैसे हमने देखा है कि किडनी होती है हमारे पास नेफ्रॉन्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो सब कुछ प्लांट के पास नहीं होता। तो प्लांट के पास स्टोमेटा होते हैं. सो स्टोमेटा हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट. और ये दोनों प्लांट्स में गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. तो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से रिलीज होता है वो रेस्पिरेशन में यूज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है. अब हमने बात कर ली कि गैशियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं. नाउ इट्स टर्न फॉर एक्सेस वाटर कि एक्सेस वाटर कैसे एक्सक्रीट आउट होता है. सो दैट प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल लीव. नाउ व्हाट अबाउट अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे गम्स, ऑयल्स, लेटेक्स, ये सब प्लांट्स के आउटर बॉडी पार्ट्स में स्टोर्ड होते हैं जैसे बार्क, लीव्स या स्टेम में. और ये रिमूव कैसे होते हैं? क्योंकि ये प्लांट्स के आउटर सरफेस पर होते हैं तो प्लांट्स इन्हें शेड कर देता है. नाउ सी दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 112. व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ excretory products? So I hope now you are able to answer this question. So this was all about excretion part of chapter life processes. Please keep watching my videos. If you like my video, please hit like button, share the video among your friends, subscribe my channel.